the right hand side, and the right hand side is shown as cuneiform, which is pink in color. So what we observe here, this picture is given in KL Kapoor book, which you normally follow, and there's no problem if you don't basically draw this structure, and very rarely the structure are asked about phenolphthalein and methyl orange, but still you need to be aware of this. So this is a structure of phenolphthalein where I have shown two forms. Left hand side is the original form of the phenolphthalein, and it dissociates to give H plus ion and the quinide form when it is in basic medium. So these are two forms, and both have different colors. One is colorless, another is pink. And we can say that when the pH of the solution is more than 8, it is pink in color. The equilibrium moves to the right hand side. And when the pH is less than 8, we have colorless solution of phenolphthalein. So this is how an indicator works when there is a change of pH. Similarly, I have shown next structure of methyl orange, and you need to observe what kind of change is taking place in the structure. In acidic medium, this bentonite form turns into quinide form. You can see the change in pH in between the two nitrogen atom, which are between the two rings. You can see it becomes NH, and there's a change in double bond character of first benzene ring. But the idea is it changes the structure, and again there are two forms depending upon pH. In acidic medium we have red color, in basic medium we have yellow color. So these substances are used in volumetric titrations where pH changes, and we want to see when a particular titration has completed with acid or base, whether at a particular time all the acid that we have in our container have been consumed or not. For that, we use these indicators. Any doubt about the indicator? किसको पूछना है कुछ? सर बताइए। सर वो क्या होता है सर कि इसको लो पीएच में करते हैं और उसको सर हाई पीएच में यूज करते हैं। ये फिनोल्फथलीन है जो वो हम बात कर रहे हैं अभी, इसके बाद उसी पे आ रहा हूं मैं। फिनोल्फथलीन का जो कलर चेंज है, that is observed when the pH is between 8.3 and 10, meaning that this transition occurs at pH 8.3 to 10. When the pH become more than 10, we have only right hand side, and when the pH is less than 8.3, we have only left hand side, which is colorless. क्या इतना समझ में आ रहा है? तो phenolphthalein yes sir changes color above a pH of 10 and below a pH of 8.3. So the range of transition is 8.3 to 10, and between this 8.3 to 10, it will show mixed color of pink with light pink, you can say. Okay. Then we talk about methyl orange. For methyl orange also there is a pH range that is, I think, 3.4 to 5. I'll just check for the right value, correct value, the exact value. Yes, it is 3.1 to 4.4. So we can say that methyl orange will change color when the pH changes from 3.1 to 4.4. Above 4.4, it will show yellow color because in basic medium it is yellow, and below 3.1, it will show red color. समझ में आ रहा है क्या? yes sir Yes? yes sir Okay. Yes. सर तो ये इसको हाँ इनवर्सली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि वो पिंक कलर से कलरलेस के लिए यूज हो सर, अगर वो एसिडिक मीडियम हो तो? हाँ, तो कर सकते हैं वो तो सर आपका हमने सॉल्यूशन। हाँ, एक्सपेरिमेंट में सर ज्यादातर इसको ऐसे लिखा है कि जो हाई पीएच होगा उसमें ये फिनोल्फथलीन को ही यूज करेंगे, ऐसा क्यों सर? वो बात नहीं है। हाँ, उसमें क्या होता है ना, जो ऑब्जर्वेशन है कलर चेंज का, दैट इज मोर स्टार्क इन केस ऑफ फिनोल्फथलीन। वो कलरलेस से जब पिंक होगा तो ऑब्जर्व करना आसान होगा एज कंपेयर टू येलो टू रेड। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ यस सर। अब तो फिनोल्फथलीन जो होता है वो ज्यादा क्लियर चेंज दिखाता है, एंड सेकेंडली
जब आप चेंज देखेंगे, जैसे कोई टाइट्रेशन है, मान लो HCl वर्सेस NaOH, अभी हम उसकी पूरी बात करेंगे। तो what we observe, when all the HCl is consumed by NaOH, the pH of solution is supposed to be 7. यही होता है ना? So, but this indicator are changing color above, meaning from a pH range from 8.3 to 10 or 3.1 to 4.4. तो 7 पे कोई चेंज नहीं कर रहा। तो अगर मुझे एग्जैक्ट अमाउंट देखना हो NaOH का रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट टू रिएक्ट विद HCl, तो वो कैसे आएगा? 7 पे तो कोई चेंज दिखा नहीं रहा कलर का, ना मिथाइल ऑरेंज दिखा रहा है, ना फिनोल्फिन दिखा रहा है। ओके, तो दैट इज अगेन वी विल डिस्कस व्हेन वी कम स्पेसिफिकली टू दिस टाइट्रेशन। इनके कर्व्स होते हैं, उसमें आप देख पाएंगे कि कितना फास्ट चेंज होता है फ्रॉम pH 3 to 11 when we are having HCl versus NaOH टाइट्रेशन। ओके, तो उसको देखते हुए हम बताएंगे कि फिनोल्फिन का क्या फायदा होगा और मिथाइल ऑरेंज का क्यों नहीं होगा। ओके, कौन सा इंडिकेटर कहां पर यूज होगा उसकी बात करेंगे। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में। पढ़ा है क्या बच्चों? यस सर। यूज ऑफ इंडिकेटर, Yes, आपने sir. डबल इंडिकेटर भी पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl में, पढ़ा था डबल इंडिकेटर कॉन्सेप्ट। Yes, sir. ओके, तो कोई बात नहीं, हमारा एंगल अलग है। हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। वो मैंने दिखाया आपको, दो इसके स्ट्रक्चर बनते हैं, एसिडिक मीडियम में एक, बेसिक मीडियम में एक, और पीएच रेंज होता है जिसपे चेंज होता है कलर। फिनोल्फिन के लिए 8 to 10 बोलते हैं नॉर्मली, बट टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज 8.3 to 10, और मिथाइल ऑरेंज के लिए 3.1 से 4.4 होता है। एक और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे मान लो ब्रोमोथाइमोल ब्लू, वी आल्सो हैव मिथाइल रेड, बहुत सारे होते हैं। इवन लिटमस इज आल्सो एन इंडिकेटर, you have malachite green. So there's a table in your book also that you can go through, जिसमें हर एक इंडिकेटर का pH रेंज भी दिया हुआ है। ओके, पर अभी मुझे सिर्फ इसकी बात करनी थी कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, इसको आप देख पाए एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और ये अलग अलग कलर देते हैं, इसका हमें थोड़ा आइडिया हो। कोई डाउट इसमें किसी को? यस, नो सर। सर ओके, देन आई विल कम आउट ऑफ दिस पिक्चर। हाँ बताइए राहुल। हेलो हाँ जी राहुल। सर, फिनोप्टेलिन जो है सर 8.3 से 10 के बीच में कलर चेंज करता है सर। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय कंडीशन तो बेसिक हो गया ना सर, मीडियम बेसिक हो गया, बेसिक में ही चेंज कर दिया है अपना कलर, बेसिक से बेसिक में। मतलब पीएच अगर बिलो 7 रहता है तब ना उसको एसिडिक कहते हैं। हाँ नहीं, आप ठीक कह रहे हो। यही मैं कह रहा था कि जब HCl वर्सेस NaOH या कोई भी टाइट्रेशन होगा एसिड बेस का, तो जब सारा एसिड कंज्यूम हो गया तो उस पे HCl वर्सेस NaOH में से pH 7 होता है। 7 पर कोई इंडिकेटर हमारे पास है नहीं जो शार्प चेंज दिखा दे 7 पर, और हमें पता लग जाए कि यहाँ पर हमारा टाइट्रेशन पूरा हो गया। लेकिन जब हम कोई टाइट्रेशन करते हैं, मान लो 50 ml HCl और 50 ml NaOH डालना था हमारे को, तो 50 ml डालने पर एंड पॉइंट नहीं आएगा, कलर चेंज नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, 50 पॉइंट यू कैन से 1 डालते हैं, एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। तो जब डालेंगे एक्स्ट्रा तो pH विल शूट फ्रॉम 7 to 11, और तब हमारा कलर चेंज दिखेगा, फिनोल्फिन इंडिकेटर होगा। इसकी हम पूरी बात करेंगे, अभी अभी यही डिस्कस करना है हमें कि कैसे pH चेंज करेगी और कितना फर्क पड़ेगा, कितना एरर आएगा हम कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या राहुल? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। उसी की बात करेंगे अभी हम, ठीक है? और किसी को पूछना है क्या कुछ? अभी सिर्फ ये समझना था आपको कि इंडिकेटर की दो फॉर्म्स होती हैं, दोनों का अलग कलर होता है, और एक pH रेंज पे ये ट्रांजिशन होता है। इतना समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके, तो अब हम आगे की बात करेंगे। मैं इसको जरा पिक्चर को हटाता हूं, फिर बात करता हूं आपसे।
ओके, तो विल मूव फॉरवर्ड। तो आज का हमारा टॉपिक था अबाउट इंडिकेटर कॉन्सेप्ट एंड हाउ वी टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. So I just gave you a brief idea. Now let's talk more about it. And before I come to volumetric titration, you need to understand how we determine pH of a volumetric titration. And there are different type of titration. We'll discuss one by one. So let's see one by one how we can talk about change in pH during a volumetric titration. And there are numericals also on this. And there are this again to understand whether how we can talk about change in pH and how we can draw a graph of change in pH versus volume of base added. So let's see one by one all these things. सबको दिख रहा है ना व्हाइट बोर्ड? ये शाहरुख खान जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नहीं दिख रहा सर, मेरे को अपना पता नहीं चेक करो चला। कनेक्शन. रुको सर, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। किसको नहीं दिख रहा था? शाहरुख खान को? सेट कर लो, मैं करता हूँ शुरू. अच्छा, आप लोगों को पता है ना कुछ कॉलेजेस में मतलब क्लासेस शुरू भी हो रही है थर्ड ईयर के लिए, और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर आल्सो मीन दे कैन कम इफ दे हैव सम प्रॉब्लम. टीचर से बात करने के लिए आ सकते हैं, लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए आ सकते हैं. पता है आप लोगों को? सर ये नहीं, बात सर। तो नहीं पता थी सर. नहीं पता हाँ, थर्ड ईयर वाला, नोटिस आएगा. थर्ड ईयर का होता था. कॉलेज का नोटिस आएगा जिसमें आपको स्लॉट दिए जाएंगे कि लाइब्रेरी से कोई बुक चाहिए तो आप इस दिन आ सकते हैं. टाइम स्लॉट मिलेगा आपको. या आपने खरीद ली सबने बुक? चाहिए बुक किसी को या सबने खरीद लिया? फिजिकल की तो खरीद ली सर. ओके, इनऑर्गेनिक. लेट्स टॉक अबाउट नाउ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस. मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं HCl वर्सेस NaOH. ब्यूरेट में लेट्स से वी हैव टेकन NaOH और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर वी हैव टेकन HCl. और सपोज दिस इज 1 मोलर, दिस इज आल्सो 1 मोलर, और 0.1 बोल सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा 1 मोलर. और आई हैव टेकन लेट्स से 50 ml ऑफ HCl. तो अगर मेरे पास शुरू में HCl है 50 ml और इसका मोलैरिटी दिया हुआ 0.1 मोलर, तो क्या मैं pH निकाल सकता हूं एट 0 टाइम? स्टार्टिंग में pH कितना होगा? क्या मैं निकाल सकता हूं इसको? यस सर. कितना आएगा? अराउंड 1 आएगा ना बच्चों? 0.1 ही तो है ना मोलैरिटी Yes. इसकी HCl की. क्यों बच्चों? क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब हमें ये सीखना है अभी हाउ टू डिटरमाइन pH at different stages of titration. Initially I have taken HCl, so this is the formula of pH when we have only HCl. अगर सिर्फ HCl है 50 ml 0.1 मोलर, तो 50 ml तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे मोलैरिटी चाहिए थी तो उसका pH जो है 1 आ जाएगा. ओके, अब अगर मान लो इसके अंदर I start adding NaOH. Suppose now I have added 49.9 ml of NaOH, which is 0.1 molar. Okay, इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था, आपको याद होगा. जब भी हम सुपर यहां से मैंने डाल दिया इसको, यहां से इसको NaOH को ऐड कर दिया, I have added 49 ml. तो अगर हमारे पास अब मिक्सचर है HCl का और NaOH का, तो लेट्स से दिस इज बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट. बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट. व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट? इफ आई आस्क यू, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं पढ़ाया ना अभी आप लोगों को? आपने टाइट्रेशन में पढ़ा क्या इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? Yes sir. Yes, sir. कौन बताएगा? बताइए. The point at which titrant reacts completely with titrant. Yeah, that is one of the definition
in our language we say that when equivalent amount of acid reacts with base. Okay, जब दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे ना, मान लो 50 ml है, 5 मिली इक्विवेलेंट है, इसके भी 5 मिली इक्विवेलेंट है, इतना ऐड कर दोगे तो when equivalent amount of acid react with base. Okay, so that is equivalence point, or we can say when all the acid gets consumed by base. Okay, तो अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल तरीके में क्या है, जो भी एसिड है यहाँ पर प्रेजेंट, जब पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaOH से, तो उसको हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं. तो लेट्स से इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो 50 ml डालना होगा. बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, ये 49.9 ml दिखा रहे हैं हम, तो इधर मैंने पहले भी किया था एक न्यूमेरिकल ऐसा, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ये आ जाएगा N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. और क्योंकि इन दोनों की चाहे HCl हो चाहे NaOH हो, N फैक्टर 1 होता है, तो नॉर्मेलिटी होती है N फैक्टर इनटू मोलैरिटी. तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी बराबर है, तो वी कैन से इट इज मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर जो निकलेगा यहां से. इसमें यहाँ पे HCl ज्यादा है, तो इट इज मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन विच आर लेफ्ट अनरिएक्टेड. तो N1V1 जब हम करेंगे तो 50 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 5 माइनस 4.99 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये 99.9 ml आएगा. इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 100 ml ले लिया, तो ये आ जाता है यहाँ पे 0.01 डिवाइडेड बाय 100 और 10⁻⁴. अब अगर ये 10⁻⁴ क्या है, मिक्सचर में कितने H प्लस आयन बच गए, क्योंकि आपने NaOH को कम डाला है. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स विच आर लेफ्ट अनरिएक्टेड. ओके, तो वंस आई नो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, क्या हम pH निकाल सकता हूं? तो यहां पे pH कितना आ जाएगा इस पॉइंट पे, समझ में आ रहा है क्या? यस, अंकिता कुमारी, समझ में आ रहा है क्या आपको? सृष्टि यादव, Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो हमने क्या किया, हमने बताया आपको कोई भी टाइट्रेशन है, शुरू में pH निकालने का फॉर्मूला ये है, और इसी टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल. इसमें अगर हमारा मिक्सचर होगा तो कैसे निकालेंगे ये बताया मैंने आपको. अब अगर मान लो यहाँ पे 50 ml हो जाए, ये सपोज नाउ आई हैव टेकन एट इक्विवेलेंस पॉइंट वी हैव एडेड 50 ml. तो 50 ml ये है, 50 ml ये है, दोनों के 5 इक्विवेलेंट हैं, तो आइडियली स्पीकिंग दोनों टोटली रिएक्ट हो जाएंगे, अनरिएक्टेड नहीं बचेंगे. और इस साइड जब रिएक्शन पूरा होगा तो यू विल हैव H2O प्लस NaCl. और NaCl किस टाइप का सॉल्ट है, सॉल्ट हाइड्रोक्साइड में पढ़ा था हमने, और ये पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, pH 7 एट इक्विवेलेंस पॉइंट. क्या समझ में आ रहा है आपको? यस सर. जब इक्विवेलेंस पॉइंट होगा, मतलब मैंने 50 ml NaOH डाल दिया और 0.1 मोलर रखा हुआ है इसका मोलैरिटी, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर है. दोनों के अगर मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे तो बोथ विल रिएक्ट कंप्लीटली. तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचेगा, राइट हैंड साइड पे ये बचेगा, इसका pH 7 होगा. समझ में आ रहा है क्या सबको? नाउ सिमिलरली अगर ये 50.1 ले लिया मैंने, एक ड्रॉप ज्यादा ले लिया, 0.1 की जगह 0.01 बोले इसको, ओके. 49.9 था तो 0.1 बोल सकते हैं, ठीक है. तो इफ इट इज 50.1 तो आपका यहां पर जो होगा चेंज हो जाएगा, 4.99 की जगह 5.01 आ जाएगा. और फिर जो आप वैल्यू निकालेंगे दैट वुड बी कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस. OH आयन सेम आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁴. और अगर आप pH निकालोगे, POH 4 होगा और pH 10 आ जाएगा इसका. करके दिखाऊंगे पूरा. यस, करते हैं इसको. मैं ये हटा दूं और इसकी जरूरत तो नहीं है ना अभी, क्यों बच्चों? यस सर.
नाउ थर्ड, एक मैंने बताया था टाइम 0 इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, एट इक्विवेलेंस पॉइंट pH is 7 and after equivalence point, आफ्टर का मतलब अगर मैं एक ड्रॉप और डाल दूंगा, वैसे 1.1 ml में 2 ड्रॉप आते हैं, अगर आप ब्यूरेट कभी यूज करेंगे तो रफली 1 ml has 20 drops and 0.1 will have 2 drops. तो अगर मैं 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा डाल रहा हूं, यानी कि मैंने इसको 50.1 ले लिया NaOH को, तो अब की बार क्या लिया हमने, ये है HCl, ये NaOH, this is 50 ml and this is 50.01 ml. Both are 0.1 molar. So if I solve this by the same method जो हमने पहले लगाया था, तो pH will come out to be 10. And similarly, if you move forward, अब की बार मान लो आपने 50.01 की जगह और ज्यादा डाल दिया, 51 ml डाल दिया, तो ऐसे pH बढ़ती चली जाएगी. And you will observe that this pH will go up to 13 or 14 and then it will become stable. क्योंकि NaOH जो अगर सारा का सारा NaOH होगा आपके पास 0.1 molar. Suppose now we have excess of NaOH in the last which is 0.1 molar. तो इसका pH निकाल सकते हो क्या? pH 13 आ जाएगा. जब सारा HCl रिएक्ट कर गया और आपने NaOH को suppose यहाँ पे 60 ml डाल दिया. Okay, so when you have only NaOH on the right hand side, pH is going to be 13. इतना समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, चंदर, पल्लवी. Yes, sir. Yes, sir. Okay. शाहरुख खान जी को समझ में आया? Yes, मानसी? sir. मानसी है Yes, क्या? sir. Yes, sir. ओके, तो मैंने क्या बताया, कभी भी हम जब टाइट्रेशन करेंगे अलग अलग टाइम पर पीएच कैसे निकालेंगे. शुरू में HCl था तो ये फॉर्मूला है, आखिर में NaOH ज्यादा हो गया, ओनली NaOH इज लेफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये फॉर्मूला है, और बीच में जो है हमारा ये फॉर्मूला है. इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले भी, एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा, दोनों का 5 - 5 आ जाएगा, नॉर्मेलिटी 0 आ जाएगी यहां पर. ओके, और फिर आप देखेंगे pH 7 आ जाएगा. तो आइडिया इज व्हेन वी हैव दीज फॉर्मूलेस वी कैन फाइंड आउट pH ऑफ दिस वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल. इस पे एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ एनुअल एग्जाम में, जहां पर 49.9 के बदले में 49.91, 92, 93 ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं, और फिर आपको अलग अलग स्टेजेस के ऊपर pH निकालने को बोला हुआ है. तो आप देख सकते हैं अगर ये 49.9 है तो आपका pH आ रहा था 3, ये जो pH 4 आता, सॉरी, और मैंने 50.1 किया तो pH आ गया 10. तो between 49.9 and 50.1, if you keep changing the values, pH will move from 4 to 10. ओके, तो अब मैं ग्राफ दिखाता हूं कैसा आता है इसका. हटा दूं मैं इसको, नोट हो गया सबका? Yes, sir. हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ये न्यूमेरिकल कई बार आए हुए हैं टू फाइंड आउट pH एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस. हुरियन शर्मा की बुक है किसी के पास? यस, डज एनीबॉडी हैज हुरियन शर्मा बुक? Yes, sir. किसने बोला, नाम बताओ. Sir, uncle. अंकुल, कैन यू शेयर न्यूमेरिकल्स? आई डोंट हैव दैट बुक एट माय होम. जो न्यूमेरिकल्स दिए होंगे ना उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड,
Yes, sir. उसका स्टेटमेंट भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पे, Okay. फिर Okay, मैं sir. क्लास में करा दूंगा उसको। जी सर। ओके, जी सर। कहाँ पे रहते हो अंकुर? सर आगरा। सही है, आगरा में तुम्हें बुक मिल रही है वहां? Yes. Okay, so what we observe now, suppose I plot a graph between the pH and volume of NaOH added. So graph moves like this. शुरू में it goes like this, then the sharp change, and then again it becomes stable. What we observe, let's say this is around 13, this value, and this is starting point 1, and this is 0, or this is 3, and this is 11. So what we observe, between 3 to 11, there is a sharp change. Sharp change का मतलब, मान लो मैंने यहाँ पे 49.9 ml डाला, और ये मेरा जो चेंज आ रहा था, आपने कितना निकाला था ना, 10 निकाला था ना उस टाइम 50.1 डालने से, तो सुपर इट इज 50.1 रफली। ओके, इतना मैंने एनएस डाला। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? सिर्फ 0.9 से 0.1 तक गया, मतलब 0.2 ml का फर्क है, और 0.2 ml 4 ड्रॉप्स आती हैं। So what we observe, within the 2-3 drops, the pH will shoot from 3 to 11 for HCl versus NaOH, or any strong acid versus strong base. Okay, so this is normal change, or it's observed that, let's say this is pH 7, where we are looking for the equivalence point, and the indicator that we can use here can be this, where we are using phenolphthalein, which changes color between 8 to 10 or 8.3 to 10. It can be bromothymol blue, which changes its color at around 7 to 9. It can be methyl orange. It can be methyl red also. मिथाइल ऑरेंज का 3.1 से 4.4 में चेंज होता है, उसका 4.2 से 6 के बीच में चेंज होता है मिथाइल रेड का। इसमें भी रेड टू येलो होता है। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू नो हियर इज दिस शार्प चेंज इन पीएच between 49.9 to 50.1, and we were looking for a change when we have added 50 ml. So during any titration, when we use phenolphthalein, there would be an error, क्योंकि जो हमारे पास चेंज आएगा वो अराउंड 50.1 पे आएगा या 50.05 पे आएगा, और हमें चाहिए था 50 के ऊपर। 50 is the equivalence point, and this, when the color changes for phenolphthalein, that is called end point. So you need to understand the difference between equivalence point and end point. End point is the point where we end the titration, where we could observe the color change. Okay, equivalence point पे क्या होगा, 50 ml के लिए 50 ml ही ऐड करना था NaOH, लेकिन ये एंड पॉइंट अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगा तो 50 ml से कम डालने पे आ जाएगा। मान लो 49.99 डाला मैंने, तब कलर चेंज हो गया, तो इसमें कुछ एरर आ गई 0.01 ml की, और मैंने फिनोल्फथलीन यूज किया तो भी एरर आएगा 0.05 का, 0.02 का। बट फिनोल्फथलीन हैज ए लार्जर पीएच रेंज 8.3 to 10 and a sharp change in color from colorless to pink. So we prefer using phenolphthalein, but we can use either of the 3-4 indicators which change their color in this particular sharp change of pH range. Okay, क्या ये बात समझ में आ रही सबको? बच्चों ग्राफ समझ में आ रहा है कैसे मूव कर रहा है? तो कैसे मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ? हाँ सृष्टि, क्या समझ में नहीं आ रहा? सृष्टि सर मुझे तो समझ आ रहा है। अच्छा, किसने बोला फिर अभी? किसको नहीं आया? सर श्वेता।
हाँ श्वेता बताइए क्या। अच्छा ये Sir, पीएच कर्व समझ में आ रहा है? सर वो इंटरनेट इशू के कारण मुझे आपका क्लियर वॉइस नहीं आया, तो इसी के कारण मैंने फिर से ज्वाइन किया। अच्छा ठीक है, दोबारा सुनेंगे सब। मैंने बताया कि जब हम HCl वर्सेस NaOH या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन करेंगे तो पीएच का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ NaOH इस तरीके से मूव करता है। There is a sharp change in pH near the equivalence point. ये equivalence point है 7। इस पर हमें 50 ml डालना था अपने एग्जांपल के हिसाब से, लेकिन 50 से अगर मैं 2 ड्रॉप कम डाल रहा हूं तो pH 3 है, और 2 ड्रॉप ज्यादा डाल रहा हूं तो pH 11 के आसपास है। और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि फिर सिर्फ NaOH रूल करता है, उससे पहले भी यहाँ पे HCl रूल कर रहा था तो कांस्टेंट थी। अब ये शार्प चेंज जो हो रहा है पीएच का, ये रेंज आ रही है बिटवीन pH 3 to 11, और इसमें कोई भी इंडिकेटर जो कलर चेंज शो करेगा हम उसको यूज कर सकते हैं। जब भी स्टीप राइज होगा ना पीएच में, तो उस रेंज में अगर कोई कलर चेंज कर रहा है पीएच, जैसे फिनोल्फ्थालीन चेंजेस कलर बिटवीन 8.3 to 10, so we can use it. Similarly methyl orange changes color between 3.1 to 4.4, तो यहाँ पे देखें 3 के बाद शार्प चेंज हो रहा है तो उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे मिथाइल रेड को कर सकते हैं 4.2 to 6। तो कोई भी इंडिकेटर जिसका पीएच ट्रांजिशन रेंज 3 to 11 के बीच में होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइट्रेशन में हम मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं, मिथाइल रेड भी कर सकते हैं, ब्रोमोथाइमोल ब्लू बोलते हैं उसको भी कर सकते हैं, 7 to 9 होता है, और फिनोल्फ्थालीन भी कर सकते हैं, 8.3 to 10 होता है। लेकिन फिनोल्फ्थालीन इज प्रेफर्ड क्योंकि इसमें शार्प चेंज ऑफ कलर है which can be noted down very easily. डाउट किसी को? श्वेता को समझ में आया? श्वेता? सर, यस सर। किसी और को डाउट? राहुल? सर सर नो सर। हाँ बताइए शाहरुख खान जी। ये ड्रॉप रेट कम करके मिथाइल ऑरेंज भी तो यूज कर सकते हैं इसमें, क्या जो कम ज्यादा करके? ड्रॉप रेट वो ब्यूरेट में से। हाँ वो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि सारे एप्लीकेबल हैं, लेकिन अगर हम प्रेफर करते हैं तो किसी एक को प्रेफर करेंगे ना, वो हमारी मर्जी है किस कारण से करेंगे। कारण मैंने बता दिया, इसमें कलरलेस टू पिंक होता है। हाँ बताइए। यस शाहरुख खान जी। फिनोल्फ्थालीन में हेलो सर, हाँ एरर आएगा ना फिनोल्फ्थालीन पे कुछ पॉइंट ड्रॉप का, तो सर उसको माइनस कर देंगे अगर फिनोल्फ्थालीन यूज करते हैं तो। नहीं है, वो आपको एरर इस तरह से हो नहीं पाता। वो जनरली जहां पर भी वो वैल्यू आती है ना, जैसे आप टाइट्रेशन करते हो तो उसी को N1 V1 में पुट कर देते हो, N1 V1 N2 V2, और फिर नॉर्मेलिटी निकाल देते हो, ठीक है। यस सर। बट हाँ आपको मैं पूछूं कि हम कैसे निकाल सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से नहीं आएगी, बट वी हैव इंस्ट्रूमेंट लाइक पोटेंशियोमीटर, पीएच मीटर, कंडक्टोमीटर। यूजिंग दोस इंस्ट्रूमेंट वी कैन आल्सो डू टाइट्रेशन called conductometric titration और pH metric titration, ओके। तो वहां पे हम क्या करते हैं, we find out again curves and find out the value which gives exact value of equivalence point, क्योंकि वहां पे इंडिकेटर यूज नहीं होता। मान लो मैं बात कर रहा हूं कंडक्टिविटी की, तो H प्लस आयन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, OH आयन कम होती है, तो एक ग्राफ बन के आता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। तो उससे हम निकाल पाते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है जहां पर सारा का सारा HCl NaOH से कंज्यूम हो गया। क्योंकि वहां इंडिकेटर यूज नहीं हो रहा तो उसमें एरर नहीं आता। उसके अंदर हम मेजर करते हैं कंडक्टिविटी को, ऐसे पीएच मीटर में पीएच को मेजर करते हैं। तो जब 7 पीएच कब हो रहा है हमें सीधा पता लग जाएगा कितने वॉल्यूम पे हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। So volumetric titrations are approximate values, whereas instrumentation titrations are exact value, like conductometric titration, pH metric titration, potentiometric titration, वो उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट आता है सीधा। और इसमें क्या आता है एंड पॉइंट। एंड का मतलब जब शार्प चेंज इन कलर होगा हमने एंड कर दी टाइट्रेशन। एंड पॉइंट कैन बी बियॉन्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, इट कैन बी बिलो इक्विवेलेंस पॉइंट इफ यू डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इंडिकेटर, ओके। ओके। किसी को भी डाउट? Yes, and Sunny, are you able to get this? Yes, sir. Okay. And who is my other favorite? Shahid Ansari. यस सर।
आगे सर Because समझ में okay, so this is first example where we talked about volumetric titration. Now let's talk another example where we have a weak acid and strong base. So now it is weak acid and strong base. ये भी हमने किया हुआ है numerical. Example could be acetic acid and NaOH. Again, let's say I have taken 50 ml of this, which is 0.1 molar. This is again, I have to choose. Suppose initially I have only acetic acid. So 0 time पर जब सिर्फ acetic acid है, how to find out pH of 0.1 molar acetic acid? You need Ka value, which would be given to you 1.8 in 10 power minus 5. पढ़ा था ना आपने, इसका ऐसे निकालते हैं एसिटिक एसिड का pH, वीक एसिड का, कोई बता सकता है? अंडर रूट If you are- Ka into C. Sorry? अंडर रूट Ka into C. हाँ, आपको मैंने पढ़ाया था that concentration of H plus ion is C into alpha, which can also be written as Ka into C under the root. Okay? तो इसी से आप pH निकाल देते हो for negative log of H plus ion. या तो आपको C and alpha दिया हो या K and C दिया हो, तो accordingly you will find out. ठीक है? This is initial time पर pH कैसे निकलेगा. Now we can have any much ml of NaOH, पर हम जो बात करना चाहते हैं, let's say we talk about again, let's say it is equivalence point पे कर लेते हैं सीधा, क्योंकि उसमें थोड़ा difference आएगा as compared to HCl. Suppose now I have added 50 ml of this and 0.1 molar of this. Okay? तो आपने equivalent amount डाल दिया दोनों का, और इस साइड जो है you will have sodium acetate and water. If you have equivalent amount, यानी कि equivalence point है एक तरह से, at equivalence point you are consume both the reactants and you're left with sodium acetate in water. And this is an example of salt hydrolysis. ये पढ़ा हुआ है आपने. अगर सिर्फ ये दो component बच जाएंगे, this is consumed, so how will you write equation for pH of this kind of salt at equivalence point? 7 plus Ka upon 7 plus 100. half. Salt pH upon would be 7 plus half. क्या था अंदर? pKa plus log C. pKa my Plus log C. Okay? अब log C निकालने के लिए क्या करना होगा? C कहां से आएगा concentration? Yes? देखो फिर स्टोइचियोमेट्री का खेल है यहाँ पर. अब इसमें से आप नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो, मोलैरिटी या वॉल्यूम है, या फिर इसको नॉर्मेलिटी समझने के लिए मिलीग्राम निकाल सकते हैं. Once you know number of moles of left hand side, you can predict number of moles of right hand side. टोटल वॉल्यूम पता है 100 ml में कितने मोल बने हैं इसके, तो 1 लीटर में कितने होंगे, दैट वुड बी द कंसंट्रेशन. निकाल सकते हो क्या? कोई बता सकता है इसका कितना कंसंट्रेशन होगा? सी की वैल्यू क्या होगी? कौन कर सकता है? यस, हमने किया हुआ इस क्वेश्चन को, आई थिंक. 10⁻⁴. कुछ तो गड़बड़ है बच्चों. 50 का तो कोई रोल ही नहीं हुआ. फिर ये कैसे आ रहा है? कितना मोल निकाला आपने? मिली मोल ही निकाल देते हैं. मान लो 5 मिली मोल इसके, 5 मिली मोल इसके, तो 5 बनेगा ना यहाँ पे. हाँ, 5 into 10 के पास 3. 5 कितना होगा? 5 into 10 के पावर -3. हाँ बिल्कुल 0.005 आएगा. ओके,
यस सर। मैं तो यहां से देख रहा हूं, देखो मैं क्या करता हूं, मैं मिली इक्विवेलेंट निकालता हूं पहले। मिली इक्विवेलेंट में इसको नॉर्मेलिटी समझ के ये आ जाएगा 5, ये भी आ जाएगा 5 और ये 5 बन जाएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के हिसाब से। तो अगर ये 5 मिली इक्विवेलेंट बन गए, मिली इक्विवेलेंट में फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इन ml इक्वल टू 5। अब वॉल्यूम इज ऑफ मिक्सचर, तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 100। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 50 + 50 था ना ये, तो 100 हो गया, तो ये 0.05 आ गया। नाउ दिस नॉर्मेलिटी इतना ही आएगा। दिस नॉर्मेलिटी इज फॉर सोडियम एसीटेट हुज n फैक्टर इज अगेन 1। किसी भी सॉल्ट में n फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज भी -1 है और पॉजिटिव +1 है, तो n फैक्टर 1 है, तो नॉर्मेलिटी वुड बी इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन। 0.05 आएगा बच्चों, समझ में आ रहा क्या? यस यस सर। सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मैंने कैसे निकाली, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये नॉर्मेलिटी है एक तरह से, क्योंकि n फैक्टर 1 है दोनों का, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज 5। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज 5 as per law of equivalence। when equal number of milli equivalent react together, same number of milli equivalent would be formed। तो 5 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे थे दोनों के, तो इनको 0 बच गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बच गया और राइट पे ये 5 बन गया। अगर 5 मिली इक्विवेलेंट बना तो मैंने वो फॉर्मूला लगा करके फिर से नॉर्मेलिटी निकाल ली। नॉर्मेलिटी वुड बी 5 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। 50 + 50 is 100, so I put here 100। 100 का नॉर्मेलिटी है, वही मोलैरिटी है, वही कंसंट्रेशन है, क्योंकि n फैक्टर 1 है। समझ में आ रहा क्या? सर बट नो सर, एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर अगर मोलैरिटी वाले फॉर्मूले से निकाले तो डिफरेंट आ रहा है। बच्चे, आपने वो 100 ml में निकाल लिया होगा टोटल, वो हाँ फिर जी 1 जी लीटर सर। में निकालना पड़ेगा आपको। कुछ आपने अपना ठीक से अप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है? मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में आपको मोलैरिटी का मतलब पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ 1 लीटर, ठीक है? थोड़ा सा कहीं पे आपने 1 इसको लीटर ठीक से में लगाया किया नहीं था। होगा। ठीक से लगा लो, आ जाएगा आंसर। अभी इतना टाइम नहीं है, आप करके देख लेना, फिर भी डाउट होगा पूछना। तो ये log C में 0.05 आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 100। और log 5 की वैल्यू पता है आप लोगों को? 0.6990 होती है ना। और pKa, अगर Ka की वैल्यू दी हुई है 1.8 इन टर्म ऑफ -5, तो ये आती है 4.75 या 4.74। कुछ बुक्स में 74 है, कहीं पे 75 है। तो आई पुट द वैल्यूज, ये 7, ये 1/2, 4.74 log of 0.05। ओके, और 5/100, और यू कैन से 5 × 10⁻²। ठीक है बच्चों? उसको सॉल्व करेंगे आप, 0.699 वैल्यू उसकी आएगी और 10⁻² का -2 आ जाएगा बाहर, तो 1.3 के आसपास आएगा। कितना? -1.3। और अगर ये ऐसा होगा तो 8.7 के आसपास आएगा ये, 8.3 और 7। देखना कितना आ रहा है। 1.3 इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो गया? 3.4, 3.4, 1.7। हाँ, यही आएगा। ठीक है यस बच्चों? सर, 8.719। यस सर। हाँ, 8.7 आ जाएगा। तो एट द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर दिस काइंड ऑफ टाइट्रेशन, pH इज नॉट 7। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार IIT के एग्जाम में। इतना मिक्स किया, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन? फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है pH = 7, <7, more than 7। तो एक्चुअल में कितना है ये? 8.7 इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH। ओके, ठीक है बच्चों? हटा दें इसको। सर ये हो गया होता नोट क्यों है? सबका? क्योंकि यस, सर ये होता क्यों है? क्योंकि वीक एसिड है इसलिए। आवाज कट रही है यार। क्या बोला आपने? रचित बोल रहा है ना? सर ये सर हाँ रचित, क्या पूछ रहे हो? बोलो। सर विकास विकास बोलिए। सर ये होता क्यों है सर? हमारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पता नहीं उससे। क्या पूछ रहे हो? ये कितना होता है क्या?
सर ये होता क्यों है सर? पीएच चेंज, अरे पीएच क्यों होता है इतना, ये कह रहे हो? हाँ सर। शुरू की क्लास नहीं करी क्या आपने? ये देखो इसमें क्या हुआ, जब ये पूरा कंज्यूम हो गए तो ये सॉल्ट बन गया यहाँ पे। NaCl जब वाटर में होता है तो रिएक्ट नहीं करता वाटर से, लेकिन सोडियम एसिटेट जब वाटर में होता है तो रिएक्ट करके OH आयन प्रोड्यूस करता है। जो इसमें एसिटेट आयन है ना, एसिटेट आयन, इट विल रिएक्ट विद वाटर टू गिव एसिटिक एसिड एंड OH आयंस। ओके, तो जब ये OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो pH विल इंक्रीज एंड दैट विल बिकम 8.7, और इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दिस टाइप ऑफ सॉल्ट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस। NaCl does not undergo hydrolysis. Okay, समझ में आ रहा है विकास? ओके, तो मैं इसको हटा दूं अब, डाउट किसी को? Okay, so this is all about when we have a weak acid and a strong base. Again, we can draw the curve of this change in pH versus volume of base added. Let's see how do we get the curve. Now you can see this sharp change in pH, this range will decrease. अभी वो 8.7 तो इसका inflection point है, equivalence point इसको बोल रहे हैं, and starting would be around 4 or 5 you can say, and this highest would be around 10. So what we observe, 10 से भी ज्यादा होता है, sorry, ये 11 के आसपास जाएगा, maybe 12 कर दो इसको. So what we observe, this range where pH shoots up with a sharp change in pH has decreased for acetic acid versus NaOH. But still we can use phenolphthalein which changes color between this pH range. We can also use bromothymol blue. Bromothymol blue. It will change color at around 7 to 9. Okay. हो गया नोट सबका? तो थोड़ा करेक्शन कर लेंगे इसमें, ये जो वैल्यू है pH 6 से 11 तक जाता है, 11 जो इसमें चेंज होता है. ओके, 6 to 11 है ये. हो गया बच्चों? Can we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now similarly we can have one more graph that is of weak base and strong acid. Weak base and strong acid like ammonium hydroxide and HCl. Again we can note down
the change in pH will come out to be आपकी बार HCl डाल रहे हैं ऊपर से, so there is a sharp change in pH from 7 to 4. An equivalence point of this titration comes out near 5.3. 7 से 1.7 कम हो गया, पहले 1.7 ज्यादा हुआ था उसमें, ऐसे पहले वाले एग्जांपल में. और this here we can use methyl orange and methyl red. We can't use phenolphthalein here. We can't use bromothymol blue here. समझ में आ रहा है क्या? और बस एक लास्ट टाइट्रेशन और है, उसको खत्म करेंगे अभी टॉपिक को. सर हाँ जी, जो पिछला था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसका इक्विवेलेंस पॉइंट 7 पे था. वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 7 कहाँ था? 8.7 बोला था ना. ठीक है सर. करके दिखाया था सॉल्ट हाइड्रोजन, इतना सारा डिस्कशन तो किया उसमें. हर्ष आप थे नहीं क्या क्लास में? हाँ सर. 2-3 बार बताया. चलिए, हो गया सबका? यस. सर इस वाले ग्राफ में इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या पीएच लिखा है? इसमें 5.3. यस सर. 5.3. ओके सर. 3 वैल्यू लिखी हुई, एक 7, एक 5.3, एक 4. There is a sharp change between this pH 7 to 4. यस सर. ओके. और इसमें हम फिनोक्सिलिन यूज नहीं कर सकते एज एन इंडिकेटर. ओके, हटाते हैं इसको. अब लास्ट टाइप है, उसके अंदर कोई ग्राफ नहीं आता, सिर्फ आपको ये समझना है दैट we are unable to carry volumetric titration between a weak acid and weak base. When we have weak acid and weak base, the change in pH is very, very slow. There is no sharp change. This is pH and this is volume of anything out of it. Any, you can say ये कम हो रहा है तो उसमें acid कर देते हैं. Volume of acid added. So what we observe, when there is no sharp change in pH, we can't use any indicator. कोई भी indicator color change sharp दिखाई नहीं पाएगा. मतलब हमें क्या चाहिए? एकदम पहले कलरलेस था तो पिंक हो गया, क्योंकि वो 8.3 से 10 शूट कर रहा है. अभी शूट ही नहीं कर रहा pH. जब शूट नहीं करेगा तो ये कलरलेस से पिंक होने में या फिर रेड से येलो होने में, it will not show clarity of the colors. Okay, you will not be able to differentiate the color. So as a result, neither methyl orange can be used, nor methyl red can be used, nor bromothymol blue can be used. We do not have any indicator which can work with this kind of graph when there is no sharp change in pH. So we cannot carry volumetric titration of weak acid and weak base. समझ में आ रहा है क्या? डाउट तो पूछेंगे. यस. डाउट किसी को? सृष्टि, श्वेता? नो डाउट सर. अभी क्लास है आप लोगों की? सर इसका इक्विवेलेंस पॉइंट अराउंड क्या होगा? बच्चे वो बता ही नहीं सकते इससे, वैसे आप निकाल सकते हो विद गिवन वैल्यू ऑफ पीके एंड पीकेबी, जो हमने अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं. जैसे यू राइट एन इक्वेशन वेयर you have, let's say, acetic acid and ammonium hydroxide. So ammonium acetate will be formed. तो अमोनियम एसीटेट किस टाइप का सॉल्ट है? आपने पढ़ा था ना लास्ट टाइम हमने वो जो किया था अपना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. रचित याद आ रहा है? यस सर, यस सर. So when you have salt of weak acid and weak base, how we find pH? वो K, Kb वाला
अगर पीके पीकेबी के बराबर है तो पीएच 7 होगा, और पीके कम है पीकेबी ज्यादा है तो एसिडिक हो जाएगा। पढ़ा था ना आपने ऐसा? और एक फॉर्मूला बताया था लास्ट में पीएच निकालने का, यस तो वही सर। हो जाएगा। बस करके दिखाऊं क्या सारा? कर सकते हैं ना रचित? यस बच्चों इसमें हमने किया था सोल्ट हाइड्रोलिसिस। यू राइट हियर वीक एसिड एसिटिक एसिड, वीक बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम एसीटेट बनेगा इस साइड पे। तो व्हेन यू हैव सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, के केबी के बराबर होगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल, के ज्यादा होगा तो एसिडिक, के कम होगा केबी से तो बेसिक। अदरवाइज पीएच का फॉर्मूला था, आई थिंक पीएच वाज 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी, यही था ना बच्चों फॉर्मूला जो था इसका पीएच निकालने का? pH of this kind of salt is 7 plus half pKa minus pKb। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, थोड़ा देख सकते हो। किया था नहीं आपने? यस सर। सर हाँ जी बताइए, यस सर। कोई पूछ रहा है कुछ? सर सॉल्ट ऑफ वीक बेस में सर एक क्वेश्चन था, उसमें डाउट था सर, ये हाँ। अमोनियम कार्बोनेट के केस में हम ये Ka1 कंसीडर मतलब नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन Ka1 ज्यादा है और Ka2 ही लगाते हैं सिर्फ फॉर्मूले में। सर ये एग्जांपल है 4.51.1 उसका केएल कपूर का। बच्चे मैं अभी बुक नहीं है मेरे पास, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरा बुक नहीं है यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे। टाइम भी 12:50 हो गया अभी। ओके कौन सा बोला आपने एग्जांपल नंबर 4.15.1 इसका थर्ड पार्ट। मैं देख लूंगा, हो सकता है मैं आपसे फोन पे ही बात कर लूंगा थोड़ी देर में। और मेरी क्लास है हालांकि अभी आज 3-4 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक, ठीक है? और मुझे एक बात और करनी थी आपसे, दिस इज रिगार्डिंग आवर सिलेबस। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हालांकि लास्ट हमारी हुई नहीं थी, उससे पहले, दैट वी आर